Good morning, dear children. Let's resume our EVS chapter. Okay, our next topic is my hands and feet. Okay, so we are going to learn about our hands and feet. Yesterday you did your activity of this hand, and I have seen very beautiful sheets that you have sent to me with all the tracing of your hand and the coloring. They were really remarkable, beta. Now let's continue. My hands and my feet. Here we will study what we use our hands and feet for. हम अपने hands और feet से क्या क्या काम कर सकते हैं. We can do many things and they are very useful parts of our body, right? So here are some activities. I'm going to write H for hand and F for feet. But what you have to do is, there are some stickers given at the back of your book, like we had seen yesterday. These stickers, right? Hands and feet. So you have to take off these stickers and paste them here. Where you use hands to do the activity, you will paste hands, and the activity for which you use your feet, you will paste the feet. Okay, I am going to write H and F. First activity, hold a bag. So to hold a bag, what do you use? This is your hand. I am writing H. Okay. Jump in a puddle. What is a puddle? जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना कहीं पर थोड़ा सा, उसे बोलते हैं puddle. So you write down F. Dance. What do you use to dance? You mainly use your feet. You use your hands also, but mainly you use your feet. Pick up a glass. For that you use your hands. To clap, again you use your hands. To run, feet. Open doors, hands. Right? Hands, like I am using my hand for this. Right? Now, if you want, you can discuss with your mama and papa or your brother and sister. There are many other uses for which you can use your hand and feet. For example, with your hands, you can color something, you can eat, yes or no? When you want to eat something, you hold the food with your hands and then put it in your mouth, right? Similarly, you use your feet for walking, for standing, for kicking, for stamping, yes or no? Yes? So, with your mama and papa, dada, dadi, didi, bhaiya, sit down and discuss the various uses of your hands and your feet. Okay? So now let's move on. Our next topic is my senses. Now, what are senses? Senses means जब आप कोई चीज को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट? और ये सब हम किससे कर पाते हैं? We have got 5 sense organs in our body. How many sense organs do we have? We have 5 sense organs in our body. Our eyes, ears, nose, tongue, skin. Okay, what are our 5 sense organs? Eyes, ears, nose, tongue, skin. Right? अब इनको सेंस ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं बाकी सारी दुनिया की चीज के बारे में पता लगाने के लिए, बाकी सारी चीजों को महसूस करने के लिए, ठीक है, उनको समझने के लिए. विद योर आईज यू कैन सी द वर्ल्ड. आप अपनी आईज से सब कुछ देख सकते हैं, यस और नो? आप आईज बंद करके देखिए, ठीक है. ब्लाइंड फोल्ड, मम्मा को बोलो आपकी आंखों पर एक पट्टी बांध दे, राइट? एंड देन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. क्या आप चीजों को देख पाओगे कि आगे कहाँ पर डोर है, कहाँ विंडो है, कहाँ टेबल है, कहाँ चेयर है? नो, नहीं ना.
तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है जब वो चलते हैं, ढूंढते हैं रास्ता। सो दे हैव टू यूज अ केन, वो केन यूज करते हैं, डेड स्टिक यूज करते हैं, है ना, ताकि देख सकें कि आगे कोई गड्ढा तो नहीं, सीढ़ियां तो नहीं, गिर ना जाए। बहुत प्रॉब्लम होती है आइज के बिना, राइट। विद योर ईयर्स यू कैन हियर। अगर आपके ईयर्स नहीं होते तो आप कैसे सुन पाते सारी चीजें। आपको बेल की आवाज सुनाई देती है, किसी ने बेल बजाई है, कोई कुछ बोल रहा है, मम्मी क्या बोल रही हैं, मैम क्या बोल रही हैं। यू कैन हियर ऑल दैट विद योर ईयर्स, राइट। देन विद योर टंग यू कैन टेस्ट द फूड। आप जो कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद कैसे पता चलता है? टंग से। अगर टंग नहीं होती तो मम्मा कुछ भी खिला देती है, आपको पता ही नहीं चलता। अब आपको पता है नहीं, करेला कड़वा है ना, आइसक्रीम मीठी है, यू नो ऑल दैट। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर टंग, राइट। विद योर नोज यू कैन स्मेल द थिंग्स। नोज से आप चीजों को सूंघ सकते हैं। आप कई बार बाहर से खेलकर आते हैं, अरे मम्मा आज आपने कढ़ी बनाई है, आज आपने राजमा बनाया है, अरे मम्मा ने तो आज पक्का केक बनाया है, हलवा बनाया है, लड्डू बनाए हैं। कैसे पता चलता है? स्मेल से ही पता चल जाता है। जब घर में एंटर करते हो तो पता चलता है किचन से किस चीज की स्मेल आ रही है, राइट। कभी भी आप जा रहे होते घूमने, रास्ते में बहुत गंदी स्मेल आती है। क्यों? वहां पे गार्बेज पड़ा होता है, गंद पड़ा होता है, तो उससे आपको बहुत गंदी स्मेल आती है ना। देन विद योर स्किन यू कैन फील थिंग्स। स्किन से आप टच फील कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज को जब आप टच करते हो कि ये चीज गर्म है या ठंडी है, इट इज हॉट और इज इट कोल्ड, इट इज स्मूथ और इट इज रफ्ड। कई बार बहुत चीजें बहुत सॉफ्ट होती है और कोई चीजें बहुत हार्ड होती हैं। वो सब कैसे पता चलता है? वो आपको स्किन से पता चलता है ना। कोई चीज चुभने वाली है, वो चुभना भी कैसे पता चलता है कि अरे चुभ रहा है, कैसे पता चलता है? वो आपको स्किन से पता चलता है, राइट। सो ऑल दीज आर योर सेंस ऑर्गन्स एंड आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो स्किन होती है ना, ये देखिए फैंटास्टिक बॉक्स है आपके यहाँ बना हुआ। ये फैंटास्टिक बॉक्स में लिखा है स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। व्हाट इज एन ऑर्गन? ऑर्गन मीन्स द बॉडी पार्ट, ठीक है। जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होता है। दे आर इंटरनल ऑर्गन्स, दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो आपको बाहर नजर आते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर, दीज आर योर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है, जो आपको बाहर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जो आपको नजर नहीं आते हैं, जैसे योर स्टमक, योर हार्ट, ठीक है। ये सब ऑर्गन्स, लंग्स, ये सब आपके अंदर हैं, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि आप अगर ध्यान दो तो स्किन जो है इसने आपके पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। आपके हेड से लेकर आपके टोज तक, ऊपर सिर से लेकर देखिए नीचे पांव तक, सारी बॉडी के ऊपर स्किन है। सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी। आपके घर में मम्मा पॉपकॉर्न बनाती हैं, आपने देखा होगा, या जो भैया पॉपकॉर्न लेकर आते हैं वहां पर उनकी मशीन में भी देखा होगा पॉपकॉर्न को बनते हुए, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू टेल मी सम आंसर्स। कैन यू हियर द कर्नल्स पॉप? जब पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं क्या आपको उनकी आवाज सुनाई देती है? पॉप की आवाज। कर्नल्स मीन्स जब हम मक्की के दाने, कर्नल्स। पॉपकॉर्न किससे बनते हैं? मक्की के दाने से बनते हैं, राइट। तो क्या आपने कभी कर्नल्स को पॉप करते सुना है जब पॉपकॉर्न बनते हैं? यस, यू कैन हियर देम। अगर नहीं सुना है, ध्यान नहीं दिया कभी, मम्मा को बोला आज पॉपकॉर्न बनाएंगे घर में, राइट। ओके। कैन यू स्मेल द पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न की स्मेल आती है? बहुत अच्छे से आती है, दूर से ही पता चल जाता है पॉपकॉर्न बन रहे हैं। यस। कैन यू सी द पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न को देख सकते हो? यस। कैन यू टेस्ट द पॉपकॉर्न? क्या पॉपकॉर्न को टेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टी लगते हैं तभी तो खाते हैं, है ना। चलिए, अब आपको समझ आया सेंस ऑर्गन्स किस लिए होते हैं। आप एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। पता क्या कर सकते हैं? आस्क योर मम्मा टू ब्लाइंड फोल्ड यू। मम्मा आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगी, बट आपको बहुत ज्यादा नहीं घूमना है। ऐसा ना हो चोट लग जाए, ठीक है, स्टेयर्स से गिर जाओ या टेबल से टकरा कर गिर जाओ, तो घूमना नहीं है। सिट ऑन वन प्लेस एंड आस्क योर मम्मा टू गिव यू डिफरेंट थिंग्स। आपको अलग अलग चीजें लाकर दे मम्मा, और आप उनको बिना देखे आइडेंटिफाई करके सोचो। क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो वो चीज कैसी है, ठीक है। अलग अलग चीजों से आपको अलग अलग चीजें पता चलेंगी कि कैसी है। आप उसको टच करके देखो, स्मेल करके देखो,
उसकी आवाज सुनो, उसको टेस्ट करके देखो, फिर बताओ वो चीज क्या है। ठीक है, मामा को बोलो डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेकर आए आपके पास ऐसे, और आपकी आंखों पर पहले पट्टी बांध दें अच्छे से टाइट सी, ताकि आपको नजर ना आए। ठीक है, एंड देन यू ट्राई, फिर आपको समझ आएगा कि सारी जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, बाकी सारे, आइज का तो यू नो कि आप उससे देख सकते हो, बाकी सब भी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, another activity. Write T for the things that you can taste and S for the things that you can smell. So first is in ice cream. ice cream को आप टेस्ट कर सकते हैं, we'll write T. Flower, you can always smell of flowers. Flowers की smells आती हैं बहुत अच्छी अच्छी, you can write S for smell. Now this is bitter gourd. Bitter gourd is करेला, you can taste it. Then these are cakes, pastries. Again you can taste it. Lemon, you can taste it. बहुत खट्टा होता है लेमन, नींबू है ना. Lollipops, candies, you can taste them. राइट अब मैं टेस्ट तो लिख रही हूँ, बट आप बेटा इन सब की स्मेल भी आएगी अगर आप इनको स्मेल करोगे। जैसे अगर आप नींबू को स्मेल करके देखो, आपके घर में नींबू होगा, मम्मी को बोलो आपको फ्रिज में से नींबू दें एंड ट्राई टू स्मेल इट, उसकी बहुत अलग सी स्मेल होती है। ठीक है, टेस्ट तो हमने लिखा है क्योंकि मेनली हमें टेस्ट से पता चलता है, लेकिन हम इन चीजों को स्मेल भी कर सकते हैं, है ना। केक्स जो हैं उनकी डिफरेंट स्मेल होगी, पेस्ट्रीज की डिफरेंट स्मेल होगी। ठीक है, करेला है उसकी अलग स्मेल होती है। सो यू ट्राई टू स्मेल देम ऑल्सो। अब जो भी चीज आपको घर में नजर आए ना, हर चीज करके देखो क्या उसको स्मेल अलग पता चल रही है। अब करेले के ऊपर अगर आप हाथ लगाकर देखोगे तो आप देखोगे वो एक रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है। नींबू के ऊपर हाथ लगाओगे वो बहुत प्लेन है, स्मूथ है, राइट। लेकिन करेला जो होता है, बिटर गोर्ड इज नॉट वेरी स्मूथ, इट इज रफ। ठीक है, ask your mama to give a bitter gourd to you and you just try to touch it and feel it. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसका टेक्सचर जो है वो एकदम डिफरेंट है, राइट। नाउ वन मोर एक्टिविटी वी हैव, गो फॉर अ नेचर वॉक अराउंड अ गार्डन और अ पार्क। अभी नहीं जा सकते हैं आप, कोरोना का डर है, फालतू बाहर नहीं घूमना है, लेकिन पहले तो आप घूमते थे, पार्क्स में जाते थे, राइट। तो अब आपको यहाँ पर वो चीजें लिखनी है, थिंग्स दैट यू कैन सी, आप क्या देख सकते हैं वो लिखेंगे, टच, हियर एंड स्मेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर आई हियर। जब मैं पार्क में जाती हूँ तो मुझे क्या क्या सुनाई देता है, व्हाट कैन यू हियर? यू कैन हियर द चॉपिंग ऑफ द बर्ड्स, यस यस और नो, चॉपिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड की आवाज सुनाई देती है। देन यू कैन हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओवर देयर, राइट। बच्चे जो वहां खेल रहे हैं उनकी आवाजें भी आपको सुनाई देती हैं, राइट। Yes or no? Yes. Then you can hear the rustle of the leaves. जो पेड़ के पत्ते हिल रहे होते हैं उनकी भी आपको आवाज सुनाई देती है, right? So I have written these three things. You can write something else also if you remember. Then what can you see? क्या देख सकते हैं? बताइए क्या क्या नजर आता है? I can see butterflies. Yes, I can see trees. I can see grass. I can see many birds also, nest also. I can see mud, I can see swings, many children. So there are lots of things that you see in a park or a garden. What can you feel? आपको वहां पर क्या फील होता है, क्या क्या चीजें आप महसूस कर सकते हैं टच से। ठीक है, what can you feel? Right? So, I can write down, I can feel the grass. कर सकते हैं, grass below my feet. अगर आप नंगे पाँव ग्रास पे चल के देखें तो आपको पता चलेगा, you can feel that, right? I can feel the breeze. मुझे हवा, breeze is जब हवा हल्की हल्की चलती है, right? जो हल्की हल्की हवा चलती है, यू कैन फील दैट ऑल्सो। या तेज हवा भी चल रही होती है, आपको मतलब वो विंड हवा वो आप अपनी स्किन पे फील कर सकते हो, होता है ना, यू कैन फील दैट, राइट। यू कैन फील द सन, यस, सन, धूप 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 भी फील होती है आपकी उसपे,
ठंड है, you can feel cold, you can feel hot, right? What can you smell? आपको क्या क्या स्मेल कर सकते हो आप वहां? I can smell flowers. Yes, flowers की अलग स्मेल आती है. Then I can smell wet mud. Mud is मिट्टी. Wet means गीली. अगर गीली मिट्टी है, बारिश होके हटी है, फिर देखिए कितनी अलग स्मेल आती है. गीली मिट्टी की बहुत अच्छी स्मेल आती है, ठीक है. या फिर गार्डनर ने अगर वाटर किया होता है, पानी दिया होता है पौधों में, तब भी आपको स्मेल आएगी मड की. आई कैन स्मेल द वेट मड एंड आई कैन स्मेल वेट ग्रास ऑल्सो. अगर ग्रास गीली है ना, घास गीली है, तो उसकी भी बहुत अलग स्मेल आती है. आई कैन स्मेल डिफरेंट लीव्स ऑल्सो. जो पेड़ों के अलग अलग तरह के लीव्स होते हैं ना, उनकी भी अलग अलग स्मेल होती है, तो वो स्मेल भी आपको वहां आती है, राइट. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन राइट ओवर हियर. टुडे विल डू दिस मच ओनली एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद योर चैप्टर. दैट्स ऑल. बाय बाय.